Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and in this session I'll be giving you some important tips for scoring well in your writing module. So guys, if you have only a week or 10 days, you may follow all these strategies religiously in order to get your desired band score. So I believe you all are able to see the screen now. So as I was mentioning, if you have your exam in a week or 10 days, just follow these steps. And what are the steps like? So guys, first of all, mainly in this session we'll be discussing writing module. But we'll also talk about reading and listening. So अब पता है that exam is in a week or 10 days. Only 10 days are left. So first of all, overall preparation plan मैं आपके साथ discuss कर लेती हूँ. First of all, do every single module once daily. ठीक है? So do listening, reading, writing and speaking daily. ठीक है? Both writing task 1 and writing task 2. Do not skip even a single one. ठीक है? So the first step is to do all the modules daily. ठीक है? All the modules daily only once. ठीक है? So do listening, reading, writing, speaking once daily. Now, second thing here is whatever you are doing, ठीक है, you need to analyze your mistakes. बहुत ही ज़रूरी है and at least in last 10 days बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So अपनी mistakes को ज़रूर analyze करो. See what your mistakes are. So let's say out of 40 आपका स्कोर आया है only 30. So अब आपने वो जो 10 questions wrong है, you will be practicing those 10 questions again. You need not to focus on 30 correct answers. You have to focus on 10 wrong answers. कि क्यों ये answers wrong है. It's indeed important. Third thing here is, अब एनालाइज करने से होगा क्या? बिफोर आई प्रोसीड टू द थर्ड वन, व्हाट विल हैपन? सो गाइज, इफ यू आर एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स, आई एम प्रिटी श्योर यू विल इम्प्रूव एवरी सिंगल डे. यू विल बी इम्प्रूविंग एवरी कॉन्जिक्यूटिव डे. अगर आज 30 आए हैं, कल 31 आएंगे. इफ यू आर एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स, इफ यू आर रीडूइंग द सेम पार्ट अगेन, कि वो गलतियां हुई हैं तो क्यों हुई हैं, लिसन टू द ऑडियो अगेन इन लिसनिंग मॉड्यूल. रीडिंग में देखो कि कहाँ पे मिस्टेक होती है. लेट्स से यू आर अ जीटी एस्पायरेंट एंड जीटी मॉड्यूल में फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्शन यू आर एबल टू डू प्रॉपरली. ठीक है, प्रिसाइसली यू आर एबल टू डू. बट वेन इट कम्स टू थर्ड सेक्शन प्रॉब्लम आती है. सो पहले तो आपने एनालाइज करना है. सेकेंडली, अब आपको पता चल गया दैट यू हैव प्रॉब्लम इन लॉन्ग पैसेज और यूजुअली इन थर्ड पैसेज, बीट एकेडमिक और जीटी स्टूडेंट, आपने मिस्टेक्स तो एनालाइज करनी ही करनी है. यू विल हैव टू डू वन लॉन्ग पैसेज एज वेल अगेन बिफोर स्लीपिंग. एंड नाउ ओनली 10 days आर लेफ्ट. सो आपको वन लॉन्ग पैसेज कितने टाइम में करना है? in 20 minutes. And while doing the passage, जो भी difficult words लगते हैं, just circle those words and write the meaning afterwards. You should know the meaning. So one long passage, 20 minutes target every night. So this is an extra task you are doing. Why? क्योंकि reading में you are facing problem in the third section only. ठीक है? So these are the added efforts, okay, some extra efforts required in order to score, in order to get your desired band score in the exam. Okay, now the fourth thing here. So we have discussed listening as well, we have discussed reading as well. Fourth thing, we are already practicing writing task 1 and writing task 2 daily. Now there is no one to check your answers. First of all, though, I would suggest when you are already paying 14,700 for the exam fee, you should spend some more amount for the assessment. There is no website online जो कि आपके assessment properly करे. ठीक है?
अगर आप लोग सोच रहे हो दी वेबसाइट्स विच आर फ्री, वर्चुअल राइटिंग ट्यूटर, writing9.com, कहीं पे भी कुछ नहीं होना. क्यों नहीं होना? बिकॉज दीज आर दी वेबसाइट्स जिसमें आपको फ्री में तो इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट वो मेनली आपके ग्रामेटिकल इनएक्यूरेसीज को चेक कर रहे हैं. बस वो आपकी मेनली ग्रामर चेक कर रहे हैं. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है, मेरी भी ये प्रॉब्लम थी कि मेरे आइडियाज वीक होते हैं. सो नो वन कैन चेक द आइडियाज एंड टेल यू. आई टुक द सब्सक्रिप्शन ऑन writing9.com. I cancelled it the next day. I got to know they can check only grammar as it is AI operated. ठीक है, सो हो ही नहीं सकता वहां पे कुछ और काम. तो आप चाहते हो कि कोई ह्यूमन आपकी राइटिंग्स चेक करे, आपको कोई मिस्टेक्स बताए, आपके आइडियाज, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम जो राइटिंग में आती है वो होती है या तो टास्क रिस्पॉन्स की, ठीक है, टास्क रिस्पॉन्स और टास्क अचीवमेंट, या फिर कोहेरेंस एंड कोहेशन. And these two are related to ideas. For checking the grammar part, you can easily follow Grammarly. आप Grammarly पे जाके you can just type your answer and check the grammar mistakes. But no one can tell you about ideas and coherence. For that you'll have to take some help, and you should. क्योंकि 14,700 waste करना doesn't make any sense. ठीक है? So you can contact the office regarding the same as well. Now fifth thing here is, ठीक है, राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2 हो गया. हम रोज कर रहे हैं. आइडियाज में प्रॉब्लम है या जहां पे भी है वो हमें ध्यान से देखना है. वी हैव टू टेक दी असेसमेंट्स इन अ सिमिलर मैनर, एटलीस्ट 2 स्पीकिंग्स अ डे, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं. यू नेवर नो कि आपकी स्पीकिंग पहले आएगी या बाद में आएगी. सो बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, 2 स्पीकिंग्स अ डे. Record yourself or practice with someone. Okay, 2 speakings. Now the 6th step here is, and it is quite important one. So guys, basically क्या होता है, whenever we are reading, ठीक है, and reading an essay, जब भी हम writing module करते हैं, what happens, we come across various essays on numerous websites. बिकॉज अभी अगर हम बात करें तो एबंडेंट नॉलेज इज देयर ऑन द इंटरनेट, बट वो हर एक नॉलेज बेनिफिशियल नहीं है. सो आप क्या कर रहे हो, आप ये गलती करते हो कि आप कोई भी वेबसाइट फॉलो करने लग जाते हो कि ये वाले ऐसे पढ़ लेते हैं. यू शुड नेवर डू इट. इवन एक बुक भी जो मैं रेकमेंड करती हूँ आइडियाज़ के लिए, वो बुक खाली आइडियाज़ के लिए रेकमेंड करती हूँ, नेवर फॉर द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट. एंड नाउ मेरा सजेशन क्लियरली ये है कि फॉलो ओनली केम्ब्रिज. आइडियाज़ के लिए यू कैन फॉलो एनी अदर बुक, only for ideas on a particular topic. But what happens in most of the books, जो questions है ना वो authentic नहीं होते हैं. Cambridge only has authentic questions, past questions. So the questions that have appeared in the past examination. So it's better you follow Cambridge for the same instead of following any other books. ठीक है, so बस सिंपल है कि आपने Cambridge फॉलो करना है. Cambridge में सैम्पल आंसर्स आर देयर, क्वेश्चंस भी ऑथेंटिक होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप किसी रैंडम बुक में पढ़ते हो, वो क्वेश्चंस तो कभी पूछे ही नहीं जाते. बेसिकली व्हाट आइल्स टेस्ट इज हेयर फॉर, इट इज बेसिकली इट वांट्स टू, एग्जामिनर्स क्या चाहते हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्ट योर नॉलेज. ठीक है, टेस्ट योर लैंग्वेज स्किल्स. उन्हें ये बहुत ज़्यादा दे आर नॉट फोकसिंग मेनली ऑन द नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक. दे वांट टू सी कि आपके लैंग्वेज स्किल्स कैसे हैं, कि आपको जो सिंपल टॉपिक्स है उनकी नॉलेज है या नहीं है. लुक एट द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस पास्ट पेपर्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, सो फॉर दैट यू शुड फॉलो ओनली Cambridge. डू नॉट फॉलो एनी अदर सोर्स मटेरियल. Cambridge इज मोर देन एनफ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, सब कुछ बता दिया, एवरी सिंगल थिंग, बट अभी लास्ट थिंग क्या है, प्रैक्टिस कैसे करें. आई नो मेनी ऑफ यू हैव परचेज्ड वन बुक और द अदर. किसी ने मक्कड़ परचेज कर रखी है, किसी ने किसी और की बुक परचेज कर रखी है. कोई भी बुक रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं है. फॉर रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, फॉर एवरी सिंगल मॉड्यूल Cambridge इज मोर देन एनफ. एंड बिफोर योर एग्जाम एटलीस्ट 8 बुक्स तो आप प्रैक्टिस करके जाओ ही. 8 बुक्स ऑफ Cambridge.
starting backwards. Book number 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. More than enough. बस ये बुक्स आप रिलीजियसली करके जाओ. फोकस ऑन योर असेसमेंट कि जो भी गलतियां हुई हैं वो क्यों हुई हैं. रोज रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एक बार एटलीस्ट प्रैक्टिस करो. रीडिंग में अगर आपको लेंदी पैसेजेस में प्रॉब्लम आती है, सो डू वन लॉन्ग पैसेज डेली फॉर 20 मिनट्स. ठीक है, इन 20 मिनट्स यू हैव टू फिनिश वन लॉन्ग पैसेज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट 3 पॉइंट्स. राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2 के लिए टेक असेसमेंट्स. ठीक है, सो फ्रॉम अ ट्यूटर, नॉट फ्रॉम एनी रैंडम वेबसाइट जहाँ पे खाली आपकी ग्रामर इनएक्यूरेसीज ही चेक हो सकती हैं. जहाँ पे खाली ग्रामर चेक हो सकती है उसका कोई फायदा नहीं है. उसके लिए तो ग्रामरली फ्री है हमारे पास ऑलरेडी. बट वी नीड समवन टू चेक आवर आइडियाज, क्योंकि बहुत बार हम गलतियां आइडियाज में ही करते हैं. फॉर दैट ऑल्सो यू कैन religiously follow Cambridge, क्योंकि sample answers, some answers written by examiners have been mentioned in almost every Cambridge book. So बस Cambridge book खरीदो and start your preparation. Now 2 speakings a day. You can record one and practice one with someone. Okay? Better होगा कि अगर कोई tutor होगा, educator होगा. And last but not the least, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. अभी भी 8 डेज हैं या 10 डेज हैं तो मुश्किल नहीं है गाइज. यू कैन रियली डू इट. 8 बुक्स फिनिश करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है. आई कैन अंडरस्टैंड अभी 8 डेज में तो नहीं करोगे. द स्टूडेंट्स हु हैव ओनली 8 डेज लेफ्ट एंड दे वांट टू स्टार्ट द प्रिपरेशन नाउ गाइज, दिस वीडियो इज नॉट फॉर you. This is for those who worked hard. This is for those who focused on the practice pass. This is for those who practiced. Okay, so just follow all these and let me know whether it's working for you or not. And अगर कोई problem आती है तो do ask me in the comment section. Bye bye, take care.